Zucchini online. Good morning, class. So, very good morning to all of you. So, in our last class, we have started the chapter chemical coding. How what setting changing? So, in our last class, yesterday we have started the topic chemical control and the coordination. कल थे आप? So, yesterday we have started the topic chemical control and the chemical coordination. So, in the humans, chemical control and coordination is done with the help of the hormones. So basically जो human body है that secretes a hormone, different glands and the इधर आ जाओ. So the different organs and the different glands present in the body, they secrete the certain kind of secretions and the chemical enzymes, and those secretions are known as the hormones. So basically what are the hormones? Hormones होते क्या? They are basically the proteins. Different organs जो हैं they secrete the protein because body जो भी वो expression किस form में देती है? In the form of the proteins. So body and the different organs they secrete the hormones or they secrete the proteins. We classify the different kinds of proteins on the basis of their functions. So hormones are basically the proteins. ठीक है? They move to the different regions or their target point via blood. So on the basis of secretions and how they reach to their target point, हमने organs को क्या किया हुआ है? Differentiate किया हुआ है different kinds of organs. For example, यहाँ glands. What are the glands? Those organs or the cells which secrete any kind of secretions, है ना? तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? Glands. So three kinds के हम study करते हैं: exocrine glands, endocrine, and heterocrine. So exocrine glands को हम बोलते हैं duct glands. That means they secrete certain kinds of enzymes and they transfer to the different organs or their nearby organs with the help of the ducts or the pipes. ठीक है? जिनके पास अपनी ducts present है, pipes हैं, वो directly दूसरे organ के साथ connected है through the ducts. Endocrine are ductless glands. Ductless glands means ducts are absent in case of these organs, है ना? जो भी अब ब्रेन है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, पिट्यूटरी प्रेजेंट है, उन्होंने डिफरेंट टारगेट रीजन्स तक अपने पॉइंट जो हार्मोन्स है उन्हें सेंड करना है. सो दे सीक्रेट द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स and pour them into the blood, and the different hormones move to the different target points with the help of the blood. ठीक है? Hormones कौन secrete करते हैं? Ductless gland. ओके. हेट्रोक्राइन जो दोनों तरह के होते हैं उनमें डक्ट्स भी प्रेजेंट है और वो हार्मोन्स या अदर सीक्रेशंस को ब्लड के थ्रू भी अपने टारगेट पॉइंट तक भेजते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल पेनक्रियास. सो पेनक्रियास एक्ट्स एज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड. इट सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन. और बाकी भी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन्हें डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में रिलीज करती है. हाँ, तो ये हेट्रोक्राइन के एग्जांपल है पेनक्रियास. एंडोक्राइन, अब इस चैप्टर में हमने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही स्टडी करने हैं. ठीक है? जो डक्टलेस हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं और वाया ब्लड दे ट्रांसफर देयर सिक्रीशंस टू द डिफरेंट टारगेट रीजंस. ओके. एक्सोक्राइन लीवर है, लीवर की डक्ट से डायरेक्टली दे पोर देयर सिक्रीशंस टू द इंटेस्टाइन. ओके, क्लियर है यहाँ तक? So next is the different characteristics of the hormones. So what are the hormones? हमने hormones को different proteins
or the secretions, basically they are produced in the minute concentration. बहुत low amount में ये produce होते हैं because they are very specific in their function. Move to the target region via blood. Okay. Clear है यहाँ तक? तो अब हमने डिफरेंट ऑर्गन स्टडी करने हैं विच सीक्रेट द डिफरेंट काइंड ऑफ द हॉर्मोन्स. कल हमने किए थे वैसे डिफरेंट ऑर्गन्स. सो सबसे पहले आपका आता है थायराइड. फर्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड. हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन और द थायराइड हार्मोन जिसे बोलते हैं. सो थायराइड और जो ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द, जो आपका लॉरेंक्स प्रेजेंट है, नेक रीजन है, लॉरेंक्स के पास आपका प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड. ओके, सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू लोब्स. बायलोब स्ट्रक्चर है, पिंकिश इन कलर है बिकॉज इट, पिंकिश कलर क्यों है इसका? ड्यू टू द रिच ब्लड सप्लाई. अब जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे ऑब्वियसली वहां पे क्या होगी, आपकी रिच ब्लड सप्लाई होगी बिकॉज दे विल सीक्रेट देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड, है ना. तो ब्लड में उन्होंने अपनी सिक्रीशंस को पोर करना है, थ्रू द ब्लड ही उन्होंने टारगेट रीजन तक सेंड करनी है अपनी सिक्रीशंस. दैट्स वाई वहां पे क्या होगा, रिच ब्लड सप्लाई होगी. क्लियर है यहाँ तक? सो थायराइड ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं दे आर नोन एज द थायरोक्सिन हार्मोन्स. बेसिकली जो आपके इसमें 3 मेन हार्मोन सीक्रेट करने हैं. T4 hormone, T3, and the last one is the calcitonin. T4 hormone, T3 hormone, calcitonin. These are known as the thyroxine hormones. T4 and T3. इनका नाम क्या है? तो क्लास कर लीजिए. Tetraiodothyroxine hormone. Tetraiodothyroxine hormone. And T3 means triiodo. Okay. In case of tetraiodothyroxine hormone, 4 iodo groups are present. T3 में क्या होगा? 3 iodo groups जो है वो present है. Okay? जो T3 है, this is your active form. So basically body में कौन सी form activated है? T3 form. चलिए यहाँ तक. T4 form secret हो रही है, T3 form secret हो रही है. ठीक है. T4 जो है that will be converted to the T3 form by the removal of the one iodo group. क्लियर है यहाँ? ठीक है. जो एक्टिवेटेड फॉर्म है दैट इज अ T3 form. The main function of the thyroid hormone or the thyroxine hormone is to control the metabolic rate of the body. ठीक है. डिफरेंट जो आपकी रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द thyroxine hormone. Okay. And the next hormone is the calcitonin, which will control the calcium level in the blood. कैल्सिटोनिन ने किसे कंट्रोल करना है? कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. जब भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में, दे विल स्टॉप द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी रीजन्स. बेसिकली जो आपके कैल्शियम आयंस हैं उसका मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. हम स्टडी करते हैं कैल्शियम आयंस रिलीज होती हैं. कैल्शियम आयंस जो हैं वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में वर्क करती है. मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में होता क्या? आपके प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. एक्टिन प्रोटीन्स है, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स हैं. सो दे नीड, वहां पे आपके ट्रोपोनिन वगैरह जो भी हैं प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो ट्रोपोनिन फर्स्टली क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है. दैट इज कन्वर्टेड टू देयर इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम बाइंडिंग. कैल्शियम बाइंडिंग होगी तभी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में जाएगा, तभी आपके कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट होती है. ठीक है. सो कैल्शियम हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द
रिलैक्सेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो कैल्शियम का लेवल जब भी ब्लड में राइज होगा, इट विल बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द कैल्सिटोनिन। ओके, कैल्सिटोनिन क्या है? जो भी आपका कैल्शियम रिलीज कहाँ से होना, मेनली बोन्स आर द मेन सोर्स ऑफ द कैल्शियम रिलीज इन द बॉडी। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली बोन्स पे जो भी आपका कैल्शियम रिलीज हो रहा है उसे जाके स्टॉप करेगा, और जो भी आपका ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज है उसे डाउन करेगा, लो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? सो 3 मेन हार्मोन्स हमने किए, सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स, T4 hormone, T3 and the calcitonin hormone. क्लियर है यहाँ पे? अब डिफरेंट डिसीजेस और द डिसीजेस रिलेटेड टू द जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, आपने हाइपरथायरॉयडिज्म, कोई डिफरेंस है हाइपरथायरॉयडिज्म और गोइटर में? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, और थायराइड हार्मोन जो है वो आपका ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब इसमें होगा क्या, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट शो करेंगे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो भी आपका ग्लूकोज लेवल है या ग्लूकोज ब्रेक डाउन है वो ज्यादा हो रही होगी बॉडी में। ठीक है, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, सेकंड इज द हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, आपका लो मेटाबॉलिक रेट होगा ड्यू टू द लो सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन्स इन द बॉडी। थायरोक्सिन हार्मोन लो अमाउंट्स में सीक्रेट हो रहा है, आपकी जो भी मेटाबॉलिक रेट है वो लो होगा। ठीक है, और आपका क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड। ऑब्वियसली वी नीड द एनर्जी ना फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होंगे। क्लियर है यहाँ तक? गेटर में क्या होता है, देयर इज डिवीजन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सेल्स। इसमें होगा क्या, आपका आयोडीन किसकी वजह से होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ द आयोडीन इन द बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में आयोडीन का लेवल डिक्रीज है, लो अमाउंट है आयोडीन का, तो आपकी जो थायराइड हार्मोन्स हैं T4 एंड T3 है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है वो सीक्रेट नहीं होंगे, बट बॉडी को रिक्वायरमेंट है हार्मोन्स की, T4 और T3 प्रेजेंट नहीं है, आयोडीन कम प्रेजेंट है, तो बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, ज्यादा डिवीजन शो करेंगे सो दैट कि वो हार्मोन ज्यादा सीक्रेट कर सके टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, टू सीक्रेट द हाई अमाउंट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, बॉडी क्या करती है, जो सेल्स है वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? So your next gland is the parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है पेयर्स की फॉर्म में, टू पेयर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर पैचेस से प्रेजेंट होते हैं, दोज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड and the secretion of the parathyroid gland is known as the parathormone. So आपका मेन हार्मोन है which is secreted by the parathyroid gland is parathormone. It works oppositely or antagonistically to the calcitonin. करना क्या है, पैराथॉर्मोन ने भी आपका कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना है। ठीक, अब उसमें क्या था, थायराइड हार्मोन क्या कर रहा होता है, कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन था, उसने क्या किया, अगर बॉडी में राइज इन द कैल्शियम लेवल है तो वो क्या करेगा, आपकी कैल्शियम रिलीज को स्टॉप करवा के कैल्शियम लेवल को लो करवाएगा ब्लड में। अब इसने क्या करना है, इट विल स्टार्ट द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस। ओके,
बॉडी में अगर कैल्शियम लेवल लो है तो उस कैल्शियम लेवल का जो कैल्शियम आयंस है उनका रिलीज कौन स्टार्ट करवाएगा? हाँ, पैराथायरॉक्सिन भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो वो फंक्शन किसने करवाना है? पैराथॉर्मोन ने। ठीक है, ऑपोजिट टू द कैल्सिटोनिन, इसका फंक्शन जो है वो ऑपोजिट है कैल्सिटोनिन के। ठीक, लो कैल्शियम लेवल है, पैराथॉर्मोन क्या कराएगा? रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन से रिलीज कहाँ से होना है? फ्रॉम द बोन्स, जो आपकी बॉडी की लार्ज बोन्स है। ठीक है, जैसे फीमर होगी, ह्यूमरस होगी, जो लार्ज बोन्स हैं, शाफ्ट जो उनका इंटरनल पार्ट है जहाँ पे आपका बोन में प्रेजेंट है, वहां पे आपका क्या होगा? कैल्शियम के स्टोर्स प्रेजेंट है, तो आपका कैल्शियम रिलीज कहाँ से होगा? जो आपकी बॉडी के लार्जेस्ट बोन्स होंगे। ठीक है, जब भी आपका कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ, इसको सिग्नल मिला, इसने क्या करना? आपका कैल्शियम रिलीज करवाएगा। जब ब्लड में नॉर्मल लेवल हो गया, राइज हो गया कैल्शियम का लेवल, तब इसने इनहिबिट कर देना है पैराथॉर्मोन को। फीडबैक जाएगा पैराथॉर्मोन को कि अब सफिशिएंट लेवल है ब्लड में कैल्शियम का, क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी जो कैल्शियम रिलीज जो है वो आप स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सिंगल hormone है which is secreted by the parathyroid gland. Parathormone, whose main function is to control the calcium level in the blood. Clear है यहाँ तक? अब low secretion of the parathormone will lead to the acromegaly. अब बॉडी में अगर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके जो मसल्स होंगे दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रॉपर्ली। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर टेटानी। व्हाट इज टेटनस? टेटनस में क्या होता है? मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड प्रॉपर्ली, यही होता है उनका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं बॉडी के मसल्स, सो उसे हम बोलते हैं टेटनस। मस्कुलर टेटानी मींस दैट मींस योर muscles are not able to function properly due to the decreased level of calcium in the blood, because calcium ions जो है वो हमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, जो भी आपकी प्रोटीन्स की कॉन्फॉर्मेशन चेंज होनी है ड्यू टू द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो किसकी वजह से होता है? आपका कैल्शियम आयंस की वजह से। अगर पैराथॉर्मोन कम सीक्रेट होगा, कैल्शियम लेवल कम होगा ब्लड में, तो उस वक्त क्या होगा? आपकी मस्कुलर टेटानी, मसल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रॉपर्ली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? So we have done it already as well. ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने ये सब कुछ कर ही दिया था। It's okay. थायराइड ग्लैंड कर लिया, पैराथायराइड कर लिया, नेक्स्ट है आपका एड्रीनल ग्लैंड। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अबव द किडनीज। अगर ये आपके किडनीज का पेयर प्रेजेंट है तो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो इसके प्रेजेंट अबव द किडनी, दिस इज नोन एज द एड्रीनल ग्लैंड। ओके, जस्ट लाइक द किडनी, हमने एक एड्रीनल ग्लैंड को भी दो मेन रीजन्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड द एड्रीनल मेडुला। हाँ, और मेडुला में, हाँ, जो आपका एड्रीनल कोर्टेक्स वाला रीजन है दैट विल सीक्रेट द हार्मोन्स, मेनली द कॉर्टिकॉइड्स। तीन तरह के होते हैं कॉर्टिकॉइड्स, थर्ड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी तो होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया होता है, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये भी फर्दर आपका डिवाइडेड होता है थ्री मेन लेयर्स, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड द रेटिकुलेटा, होता है ना? So the three main layers of the adrenal cortex are zona, glomerulosa
zona reticulata and zona fasciculata and zona reticulata. So these three layers will form the different kinds of the corticoids. अब ये जो आपकी 3 layers हैं ये अपने different corticoids जो हैं वो release करेंगी in the blood. Okay, so the function of the glomerulosa is to release, क्या release करता है? देखो एड्रीनल, ये आपका अगर एड्रीनल ग्लैंड है तो इसे हमने 2 रीजन्स में डिवाइड किया ना, सेंट्रल मेडुला वाला पार्ट है आपका, ठीक है, और ये जो आपका आउटर रीजन है दिस इज द एड्रीनल कोर्टेक्स, यही बोला हमने। फर्दर जो है एड्रीनल कोर्टेक्स, इसकी आपकी डिविजन्स होंगी ना, मतलब डिफरेंट लेयर्स होंगी एड्रीनल कोर्टेक्स की, क्लियर है? आउटर वाली होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होगी फेसिकुलेटा एंड इनर इज द रेटिकुलेटा। आपका ये जो एड्रीनल कोर्टेक्स वाला रीजन है वो डिवाइड किया हमने 3 रीजन्स में, ठीक है। स्टार्टिंग में एक सिंगल ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड को डिवाइड किया 2 मेन रीजन्स में, एड्रीनल कोर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। जो आपका आउटर वाला कोर्टेक्स है उसकी फर्दर डिविजन्स है ये, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड द जोना रेटिकुलेटा, क्लियर है? अब ये जो 3 लेयर्स होंगी इन्होंने डिफरेंट काइंड्स के जो कोर्टिकॉइड्स है वो रिलीज करने हैं, ठीक है। अब जोना ग्लोमेरुलोसा will release the glucocorticoids. Fasciculata रिलीज करेगी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, और ये जो जोना वाली है ये रिलीज करेगी आपके एंड्रोजेंस और द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द एंड्रोजेंस, और यू कैन से दैट द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे? जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं बॉडी में उनके रिलीज को कंट्रोल करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे? दे विल चेक द रिलीज और द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपके मेन आ जाते हैं कोर्टिसोल्स, आप वर्ड सुनते हो ना कोर्टिसोल्स, सो कोर्टिसोल्स क्या करते हैं? चेक करते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन को इन द ब्लड, ठीक है, एंड दे विल मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, क्लियर है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कब रिलीज होना है ये सब कौन चेक करता है? कोर्टिसोल्स, क्लियर है? लास्ट इज द एंड्रोजेंस और द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दे विल क्या करेंगे? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, दे विल चेक द सिक्रीशन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स ना, ठीक है। बॉडी में हम स्टडी करते हैं ना एंड्रोजेंस, एंड्रोजन क्या करते हैं? डायरेक्टली जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन? Testosterone is known as the male sex hormone whose main function is to control the secondary sexual characters in the males. So जो आपके different androgens होंगे they will control the sexual hormones in the body. ठीक है, फीमेल्स में भी प्रोजेस्टेरोन वगैरह को जो भी रिलीज होना पिट्यूटरी के थ्रू वो सब कंट्रोल करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बात नहीं, नोट तो नहीं है। कोर्टिकोइड्स रिलीज किए, कोर्टिकोइड्स किसने रिलीज किए? एड्रीनल कोर्टेक्स ने। अब ये जो आपका मेड्यूलरी पार्ट है, मेड्यूला वाला, इट विल सीक्रेट द 2 मेन हार्मोन्स नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, जिन्हें हम नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, है ना, वो सुना है वो वाला वर्ड, ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ओके। सो द फंक्शन ऑफ दीज बोथ ऑफ दीज, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है? टू कंट्रोल द हार्ट बीट,
ओके जो भी आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म उसे कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? नॉरएड्रेनालिन एंड द एड्रेनालिन. नॉर्मल कंडीशंस में जो है वो एड्रेनालिन जो है इट विल चेक योर नॉर्मल हार्ट बीट और द पल्स रेट, जो आपकी नॉर्मल कंडीशंस हैं. हाँ नॉर एड्रेनालिन आपका रिलीज होता है नॉर्मल कंडीशंस में, और ये चेक करता है आपकी जो भी स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को, कब उसे कंट्रोल करना है, कब फाजन करना है, कब स्लोअर डाउन करना है. ठीक है. ड्यूरिंग द शॉक कंडीशंस, जो भी आपकी स्ट्रेस कंडीशंस होती है तब आपका रिलीज होता है एड्रेनालिन. फेयर कंडीशंस हैं, ज्यादा इमोशनल कंडीशंस है, कोई शॉक कंडीशंस है, तब आपका रिलीज होता है एड्रेनालिन. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन. एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन को हम और क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन. हाँ वो भी बोलते हैं बिकॉज इट इज रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशंस. ठीक है. होता है ना स्ट्रेस कंडीशन में आपकी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन. क्लियर है. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स ने एक तो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करेगा कॉर्टिकॉइड्स. थ्री डिफरेंट काइंड्स के हम कॉर्टिकॉइड्स स्टडी करते हैं. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द एंडोजेंस और द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. क्लियर. मेडुलरी रीजन जो है वो रिलीज करता है नॉर एड्रेनालिन एंड द एड्रेनालिन. Adrenaline during the emergency conditions and in the normal conditions it release the non-adrenaline. Clear? This is all about the adrenal gland. एक्सक्रीशन में हमने एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन स्टडी किया था. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इन द एक्सक्रीशन? स्टडी किया था ना. सो इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन. वही पूछ रही हूँ, बताओ. किडनी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? सो एड्रीनल ग्लैंड के साथ ही रिलेटेड है किडनी. सो नेक्स्ट इज द किडनी. नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द किडनी. परसों स्टडी किया. जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस स्टडी किया हमने. हाँ रेनिन. ठीक है. किडनी का मेन जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो दैट इज रेनिन. इट इज सीक्रेटेड बाय द जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस. हमने स्टडी किया था जेजीए जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो आपके आर्टेरियोल्स के ग्रेन्युलर सेल्स होते हैं, डार्कली स्टेन्ड सेल्स प्रेजेंट है ना. तो दोज आर दे फॉर्म द जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस और ये सीक्रेट करेंगे सेल्स रेनिन. रेनिन क्या करेगा? मेनली एक्टिवेट्स द एंजियोटेंसिनोजन. जो आपकी एंजियोटेंसिन की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, इट विल कन्वर्ट दिस एंजिन. हाँ एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन. बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन. क्लियर है. अब ये जो एंजियोटेंसिन है दैट विल सिग्नल द एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया टू सीक्रेट द एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट किया. दिस एल्डोस्टेरोन विल stimulate the reabsorption of Na positive ions. ओके सो दैट जो आपका यूरिन है वो और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में फॉर्म हो. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा? रेनिन. रेनिन विल स्टिमुलेट द एंजियोटेंसिन. इनएक्टिव फॉर्म है, कन्वर्ट होगी एक्टिन फॉर्म में एंजियोटेंसिन की फॉर्म में. दिस एंजियोटेंसिन विल सिग्नल द एड्रीनल ग्लैंड. वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एल्डोस्टेरोन टू एब्सॉर्ब द Na पॉजिटिव आयन ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है. Na पॉजिटिव आयन यूरिन फॉर्मेशन के वक्त जो भी है मोस्टली रीअब्सॉर्ब होंगे डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल स्टडी करते हैं ना, वहां पे आपकी Na एब्सॉर्प्शन होती है. ठीक है. तो आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है और जो आपका यूरिन फॉर्म हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा. क्लियर है. So this is all for today. Thank you class.